हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम रामू गडकर है, हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया से। एज कमिटेड, हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया हर महीने का जो नेशनल वेबिनार करना करना है, जो मेडिकल के ऊपर रहेगा, उस वेबिनार का प्रथम वेबिनार हम आज डॉक्टर सिसिल रोज सर, जो वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल है हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनको लेकर ये हम इम्पोर्टेंट वेबिनार कर रहे हैं। पहले फर्स्ट उनका ही टॉक होगा, उसके बाद में हमारे साथ यंग हीमोफिलिक डॉक्टर डॉक्टर वेंकटेश पर्लिकर जी है। उनका भी एक टॉक हमने रखा है। इस दो डॉक्टर का इम्पोर्टेंट टॉक है, तो दोनों को लेकर हम ये वेबिनार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पिंटू पलवा सर का ये कॉन्सेप्ट था कि हम हमारे कम्युनिटी के डॉक्टर्स को लेकर हम ये वेबिनार प्लान करेंगे, और ये प्लानिंग का फर्स्ट वेबिनार हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी इंडिया के सभी पीडब्ल्यूएस फैमिली का मैं रामू गडकर आपका स्वागत करता हूँ, और डॉक्टर सिसिल रॉस सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। दिखता है आपको? You Yes, see the sir. presentation? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Ramu, for welcoming, and it's a very important thing. And we आजकल lot of improvements are there in hemophilia, and it is a future looks like very bright for all patients with hemophilia. And this is what I'm going to say. Maybe in the next 4 or 5 years, the landscape of hemophilia care एकदम बदल जाएगा और बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इस बारे में हम थोड़ा देखेंगे। आजकल क्या है? आजकल यू टेक 2024, व्हाट आर द करंट अप्रोचेस ऑफ हीमोफिलिया केयर? यू हैव अ प्री रिप्लेसमेंट थेरेपी। पिछले में सबको मालूम है कि क्रायो देते थे, ऑपरेशन करते थे, और उसके बाद आइस लगाते थे, और after that we used to elevate the limb, and then ultimately what used to happen is patient would be in a wheelchair because it not get good amount of factor. And even as of now, as we speak, there are 2 hemophilia patients in the hospital who are wheelchair bound, and we are trying to make them walk by giving a knee replacement and or an arthrodesis so that the person is not dependent on the family. But this is the problem and the sad part of the people who are having hemophilia in the country. Abhi kya hai? We have replacement therapy now that you have a standard half-life and extended half-life. The standard half-life, majority of the people still in India are taking on demand. जैसा कि जब ब्लीडिंग होता है, then you take treatment. जब ब्लीडिंग नहीं होता है तो नहीं लेते हैं treatment. There are a small segment of people, maybe 5 to 10% of patients with hemophilia in the country now, who are on prophylaxis, either from the government sector or from ESI or from railways or army, जो भी है, इनको prophylaxis देते हैं कि low dose और कभी intermediate dose prophylaxis देते हैं. And the prophylaxis can be either standard half-life or extended half-life, and that is the current treatment, and people are doing well with this. And if you take patients with the prophylaxis, you are near normal, whereas if you take on demand, any patient who is on demand therapy will be crippled, and उसको crutches वगैरह, walking stick वगैरह लेना पड़ता है. Now अभी future में क्या है? What is the future of patients with treatment with hemophilia? There is something called a non-factor replacement therapy. Either you substitute or rebalance. एक process है. Then I will talk to you about that a little later. And then of course the gene therapy. Okay. मुझे लगता है कि ऐसा पहले हीरो होंडा का एड देखते थे, उस समय कितना देगी करके एक एडवर्टाइजमेंट आता था, और कितना देगी, कितना माइलेज देगी करके. आजकल यही हीमोफिलिया में है कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट. ऐसा है कि लगा दो इंजेक्शन महीने पे एक बार और भूल जाओ कि आपको हीमोफिलिया था या नहीं करके, and then life goes on as normal. I mean, this is the kind of treatment which are earth-shaking and which are remarkable. जैसा हीरो होंडा का ऐड है, ऐसा टाइप का होना चाहिए. Okay. So, what are the transformational therapies? What are the therapies or treatments that are really revolutionize the treatment of patients with hemophilia? One is that for the past now almost 8-10 years, many people in this audience may have received the extended half-life of factor 8 or factor 9, and a lot of clinical trials have occurred, and we found that patients who have taken
long-acting factor 8 or factor 9, they require less of infusions, less frequent infusions, and better effectiveness. And this is one of the major things that has come out in the past 10 years or so. Then you have mimetics. Mimetics means emicizumab जैसा type का जो bispecific antibody है. What it does is factor 8 आपके बॉडी में नहीं है, तो factor 8 नहीं है तो factor 9 और factor 10 का काम नहीं चलता है. ये क्या करता है, factor 10 को निकालता है एक हाथ में, factor 9 को निकालता है एक हाथ में. So the resonance of factor 8 does not happen और उसको clot हो जाता है. And there is of course rebalancing therapy है और cure or near cure by gene therapy. ये हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं. So I told you that factor 8, okay, factor 8 half-life, standard half-life you can see purple जो है, okay, this is a standard half-life, okay. That means एक peak हो जाता है when you give infusion, it goes there and drastically dark down in about 2-3 days, 2 days or so, okay. Whereas when you extend the half-life of factor 8, then you know it lands up to 3 days, 3.5 days. So half-life is about more than 24-40 hours का थोड़ा increment होता है. So that क्या होता है, when you are taking extend half-life, you don't have to take twice a week. You may probably manage with once a week. And when you take the extend half-life, you can see the peak. Now, supposing if you take minimal amount of factor 8, that is more than 1%. That means you're taking a severe hemophilia, उसको mild बना देते हैं by making 2 or 3%. ये level माना है, ये level माना है. Can you see my pointer? Can you see my pointer? Yes, sir. Okay, fine. So at that level, you can see that factor 8 remains, extend half-life remains a longer period of time so that the person doesn't bleed. On the other hand, if you take non-factor replacement therapy, you are approximately targeting 15 to 30% of factor 8 equivalent so that the person does not bleed at all. So that is a major advantage. So you have an extended half-life and a standard half-life. Standard half-life, you have to give frequent injections, whereas extended half-life, you are taking the injection, the same dosage, but less frequent. So this is what is obvious from graph. Now, what does a person with hemophilia need and what are the game changer options? Now, normally you have to give all factor 8 replacement that is there, license for hemophilia care, are given by IV. Okay. Now, IV, especially in children, becomes difficult and a lot of problems are there. And persons with hemophilia have to come to the hospital or they'll be taught home therapy, how to self-infuse. And many people may be not able to take IV infusions. So also when you keep on puncturing the vein can get damaged and sometimes the vein gets to excessive bleeding and the vein becomes a little thickened and tortuous. So these are the problems of patients who are on prophylaxis or who can take on-demand treatment. So what happens if there is a therapy that you can give subcute, जैसा insulin लेते हैं, like you give subcute, and insulin at least you're taking twice or thrice a day. And in hemophilia, if you just take once a day or once a week or once a month or once in 2 months, how exciting will that be? Okay. So the newer treatments that are available, you have something called the anti-TFPA antibody, anti-TFPA peptides, anti-inflammatory knockdown, and bispecific antibody. इसके बारे में थोड़ा I will tell you. All these are subcute. That is, you are taking like insulin. You're not taking IV, but you're taking subcute, right? And these are the pens that are available now. We are having about 8 or 10 patients in Bangalore who are using this pen, okay? And it is just like taking insulin, and you can have a factor 8 or factor 9. You can have anti-TFPA antibody. You can have anti-inflammatory knockout. Only bispecific antibody like emicizumab, that's Hemlibra, that's sold in the market. We had trials some years ago. That is only for factor 8 with or without inhibitor. So these are all subcute injections that you don't have to be bothered about intravenous vein, isotype, and then you take it, at very short amount. Now, how does it work? Normally, you have factor 10, factor 12, factor 9, factor 8. Factor 8 is here. What factor 8 does is it brings about interaction between 9 and 10 and then produces the clot, fibrin clot. Okay. So what does Hemlibra do? What does Hemlibra do? It
you don't have factor 8. On one hand, it brings factor 9. On the other hand, it brings factor 10 together. And this process goes on and fibrin is formed. That's how Hemlibra works. This is given subcute. It is given as 3 mg per kg once in a week, or 6 mg per kg once in 2 weeks, or 6 mg per kg once in a month. And this clot formation remains, and there is no problem at all. Okay. So this is how Hemlibra works, and it's available in the market. Only thing is it's too costly, but it only works for factor 8 deficiency patients with inhibitor or without inhibitor. Clear? तो ये factor 8 का ही है, ये factor 9 का दूसरा का ये नहीं काम करता है. दूसरा बात ये है, दूसरा another type of treatment ये है anti-TFPI antibody. तो बोलते हैं concizumab, ये Novo Nordisk का है, whereas Hemlibra is by Roche. This is from concizumab. It's a new molecule that is for factor 8 and factor 9, both with inhibitor or without inhibitor. ये सबका common है, and we can use this. So what it does is that this works actually as if the lot of factor 7 is there in the body, and therefore there is no clot. That's how it basically works. Okay. Now you have antithrombin 3 inhibition, that is fitusiran. So what happens is, इसमें जब thrombin होता है, the thrombin normally is eaten by antithrombin. Supposing you knock off this, then thrombin will not get eaten up in the body, and therefore thrombin is formed, your body tends to clot, and therefore person doesn't bleed. Let us look at each of these examples in a little more detail. Now, I told you Hemlibra will take factor 9 on one hand and factor 10 on the other hand. दोनों को भी जुड़ाता है और clot होता है. ये बोला कि 3 mg or 6 mg, 3 mg twice a week or 6 mg once a month. Okay. And जब देते हैं, so the amount of subcute and the amount of bleed. Supposing you take a patient with severe hemophilic that is bleeding about 25 times the this fellow has zero bleed. Earlier, जब prophylaxis हम देते हैं, so we were saying from 10 to 20 bleeds a year. If 2 or 3 bleeds or less than 3 bleeds are happening in a year, that is very good. Now with Hemlibra, we are not saying bleed, we are saying zero bleed. Zero bleed, zero infection. Okay. So that is a remarkable thing. These are not like mild hemophilics, but these are severe hemophilics whom we have bleeding, annual bleeding rate, something about 30 bleeding rate, has come down drastically to about 0 bleeding rate. So this is great advancement in patients with hemophilia factor 8 or without. Okay. So now, just to make you understand what are the newer concepts, because Hemlibra is easy to understand. You don't have factor 8, and दोनों हाथ में वो रीड के लाके देता है, क्लॉट बन जाता है. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Hello. Sir, hello, sir. आपका audio थोड़ा crack हो रहा है, sir. Could you please take the mic closer to mouth, sir? Then would be better. Thank you, sir. Audio is not that clear. It's not that clear, sir. So audio, sir. Audio is not that clear. Hello. Hello, yes, sir. Yes, sir. Now it's clear, sir. Better, sir. Okay. Fine. Sorry. Thank you. Thank you, sir. Sir, I think the mic is like a bit far from the mouth. That's why, sir. Okay. So Thank you, sir. Thank you. So now we have to understand that normally in the body there is a bleeding tendency and a clotting tendency. So when you have a bleeding tendency, okay, what happens is that there are factor 8, factor 9, factor 10, factor. These are all factors in the body. Whereas antithrombin 3, TFPI, protein C, protein S, these are the proteins that cause clotting. If you have a deficiency of these, they cause clot. If you have a deficiency of these, they cause bleeding. Clear? Now, if you don't have factor A, if you don't have, let's say, antithrombin 3, okay, in the body, normally, okay, you tend to clot. Okay? Usko gangrene ho jata hai. You clot, blood vessels clot in the arteries and the veins, and you get gangrene, and you can clot in the leg, you can clot in the heart, you can clot in the liver, you can clot in the
lung, you can clot the brain. ये सब होता है when you have patients who have antithrombin 3 deficiency, which may be congenital or acquired. Okay. On the other hand, if you have patients who have factor 8 deficiency, then you have bleeding. Okay. And you all know that when you have factor 8 or factor 9 deficiency, you bleed and you have hemophilia, that you have a giant bleed and so on and so forth. Okay. So what happens if you knock off in a person with hemophilia, if you knock off antithrombin 3, the balance is set right. Clear? I will go again. So now in a patient with hemophilia, you don't have factor 8. And you don't have factor 8, there's a tendency to bleed. Right? So in a patient with hemophilia, if you knock off antithrombin 3, then the balance set right, he won't bleed. Clear? So this is what Yes, sir. happens. Okay. So this is what happens. So in a patient with hemophilia, okay, you have no factor 8 or factor 9, then there is no clot. Right? Because antithrombin 3 is there and there is no clot. Now, supposing you knock off the antithrombin 3 by giving a drug, the thrombin is formed and blood will clot. Clear? So this is what happens when you give a drug called fitusiran. Okay. So this is drug given at 10 mg once a month, 10 mg once in 2 months, 20 mg once in 2 months, 50 mg once a month, 50 mg once in 2 months, etc. So majority of the people may probably do much better with 10 mg or 20 mg, somewhere in that range in India, once in 2 months, and people won't bleed. Okay. So this is another remarkable thing. Large number of patients in our hospital, I mean, 3 or 4 people are there in the hospital who are taking this, and they have not bled for the past now 3-4 years. And some of them are with inhibitors, and they have not bled. So this is how this medicine called fitusiran works. Okay. Now about the TFPA, concizumab. This is again, some of our patients are there on this trial. So what happens normally? There is a tissue factor which burns up factor 7, and therefore there is no 7A in the body. So normally the tissue factor inhibitor puts down the fire in the body, and therefore the 7A is active. Now what happens if you knock off this? Okay, it is like actually giving a lot of 7A, Nova 7 into the body. Okay, so in a patient who's got hemophilia, okay, the patient who's got hemophilia, and if you make the inner amount of factor 7 not get destroyed, so a lot of factor 7 is available in the body. Normally, factor 7 is there in the body for all patients with hemophilia, and the tissue factor keeps on eating it up to maintain the balance. What happens here is you stop the body from eating the local factor 7 in your body. So what happens? Amount of factor 7 is increased in your body, and therefore you won't bleed. So this is why it works both in factor 8 or factor 9 with inhibitor or without it. So this is another thing. This is given subcute once a day, once in the night. You take the shot and forget about it. Life is normal. Yeah. Quite a large number of patients, but 3 or 4 patients are there in the study. So to summarize, there is emicizumab, there's Hemlibra. That is, you got 2 hands there. You can see one, it takes factor 9 from one end and factor 10 from one end, brings them together, and so the factor 8 is not necessary. Plot is formed, so that most of the people here, quite a few people here may be receiving that, and that's the remark. I told you about fitusiran. You knock out the antithrombin 3, rebalance the system, and the person doesn't bleed. I told you about tissue factor pathway inhibitor. That is actually as if when you give this medicine once a day, it looks like as if you have local factor 7A is increased in the body, and therefore you will not bleed. Okay. Then of course, the last thing is I want to talk to you about gene therapy. Now, gene therapy is again a remarkable thing that in India there are some trials going on. So it should be available. Okay. And so it is a virus. The gene is put into the virus, and the virus is given IV, and then it is an outpatient procedure. You take a particular dose of virus and you give a shot, and then after 5 days, 7 days, you start producing your own factor 8. So what it does is that you factor 8 or factor 9 DNA, there is a cassette. उसके cassette के अंदर ये है
सड़ने का, क्योंकि वो वायरस का जो गट है वो गट नहीं है, वो गट के अंदर ये डाल देने, वायरस एम्प्टी शेल है उसके अंदर ये डालने का, फिर उसके बाद आईवी देने का उसको, and when you give IV, the liver it goes and locks itself in the liver. The liver gets infected with this. So when the liver gets infected, it gets into the liver enzyme, the liver cell, and starts making factor 8 or factor 9, whatever gene you have put there. And now there are clinical trials both the UK, US, and in India, and this can also be used for immune tolerance for inhibitor patients. The patients with inhibitor hai, इनको देंगे तो it's like giving ITL. So this is how it works. The DNA is put into the virus. The virus goes and integrates itself into the liver cell, and afterwards start making factor 8. Okay. So Good evening, sir. tell me. Sir, I'm from northeast part of India, sir, Sikkim. Yeah. Sir, my son is a hemophilia patient, sir. Hemophilia, severe hemophilia A, sir, factor 8. Yeah. Sir, like at the moment, sir, like you talked about all these treatments, sir. Which one would be the best for him, sir, at the moment? Like, Depends on what he's got. So, person is on Fitusiran or patient on Constazumab, either of the two depends on what is sir, convenient for him. sir, where exactly can we avail this facility, sir? It is available in Bangalore, it's available in Vellore, it's available in Pune. Okay, sir. Sir, the one which you talked about, that balancing, sir, like you remove there's no factor 8, and then you talked about balancing, removing the other one, sir. That, sir, is that sir treatment effective, sir? Like, Of course, it is effective. yes, sir. So, sir, those facilities will be available in Bangalore, sir. Yeah. So Sir, I'll tell you more about this. yes, sir. Something Sorry. happened to the thing. Waiting. Oh yeah. That's all. I'll do one thing. Stop screening, and again I'll start screening because something happened. And Sir, I can hear you, sir. yeah, and, something happened here. Okay. So okay. So this is the gene therapy. Now, if you look at factor 8, there are various doses that you try. Small dose, if you give, the factor 8 level C is 30, 40, 50%, right up to 8 weeks or so. Now, supposing you give a little higher dose, it goes to about 170, 180, some of these people. So that is the beauty of gene therapy, that you're getting a maintenance of very high. So supposing you take 2020 data, in the first year, the factor level is about 64%. In the next year, it comes to 36%, remains 33%, and the fourth year goes to 24%. So about 4 or 5 years. Again, maybe you need to give a shot of what. Now there are studies that say that how can you maintain the factor about 30-40% for a long period of time. So this is the 2020 data that is there, that it will maintain the factor to somewhere between 60 and 30%, so that the person becomes nearly okay. Now, if you take factor 9, okay. Now, when you take factor 9, maintains a steady level somewhere between 30 and 40, and this is again remarkable. And factor 9 therapy is much easier because the gene is small. Factor 8, the gene is big, and therefore not as easy as factor 9 as far as gene therapy. So, just to summarize, when you take factor 8, either short acting or extended half-life, you have to keep on giving injection frequently, almost every other day. Whereas you take extended half-life, maintain a level which is protective at this level, you have to keep giving it less frequently. Okay. Now, for non-factor therapy, you can maintain it somewhere around 30-40%. What I told you, like balancing processes or hemorrhage or something, you can maintain at a level which is 30-40%. When you take gene therapy, it's probably a cure because you're maintaining a level somewhere around about 89 to 100%. So this is the level at which you can work, and the future, therefore, I told you, is bright for patients with hemophilia. And some of these studies are taking place in the. So what are the key points?
Currently, multiple new treatments are now available, being developed across the globe for patients with hemophilia with and without inhibitors. They are all designed to address gaps in the challenges of current treatment. Because आजकल treatment है, patient दूर है, hospital को नहीं आ सकता, और कभी-कभी factor नहीं मिलता है, factor comes intermittently. So if the person is able to come to the hospital once in a month or once in 2 months and take one shot and go, life is okay. Half-life जो है, it offers some improvement because instead of giving very much frequently the injection, you can give it less frequently. That is another advance that has happened, and the drug is available both in the government sector and the private sector is available, and still a great advance for patients on prophylaxis. And I told you great things about non-factor replacement. They have unique targets and are unaffected by inhibitor. तुमको inhibitor है या नहीं है, इसका मतलब नहीं है ये सबके साथ काम करता है. Gene therapy offers a potential for cure or near cure. We'll have to see what the gene therapy are, but these are all processes that are happening in patients. What is normal? Normal is a small baby taking first steps without bruise. So, मार नहीं पड़ने का, उसको hematoma नहीं होने. Normal is finding a balance without fearing a fall. साइकिल चलता है तो बैलेंस अच्छा चलना है, जब गिर जाएगा तो मार पड़ेगा तो person is normal, छोटा मोटा bruise आएगा, he is not afraid of falling. Okay. That is normal life for him. Normal is what? DNR के लिए एग्जाम देता है without health concerns. लिया, consumab लिया, Hemlibra लिया, जो भी है, he is not bothered. He will go for the exam as normal. And तो कुछ concern है कि मुझे exam में bleeding हो जाए. तो ये ख्वाब है, ये बहुत दूर में है ख्वाब, नजदीक आ रहा है. So any questions? Yes, Dr. Cecil sir, thank you so much. आपने बहुत ही अच्छा इसमें सभी हीमोफिलिक बंधुओं को आपने समझाया. हम क्वेश्चन आंसर आपका सबका ले लेंगे. आपके क्वेश्चन support@hemophilia.in के ऊपर भी आप भेज सकते हैं. मीन द टाइम हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे. आप चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन टाइप कर लीजिएगा. हमारे वॉलंटियर सिमिलर क्वेश्चन को लेकर सुशील सर और डॉक्टर वेंकटेश सर को लेकर क्वेश्चन लेंगे. भूतिया जी, आपका भी क्वेश्चन कुछ रहेगा तो आप लिख के चैट में दे दीजिएगा. हम एंड में Yes, sir. क्वेश्चन ले लेंगे डेफिनेटली. बहुत बहुत थैंक यू सुशील सर, हमारे साथ जुड़े रहेगा. आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले तो आप भी रहिएगा साथ में. तो डॉक्टर वेंकटेश हमारे साथ में है. इनका टॉपिक है लिविंग विथ हीमोफीलिया. एक मैं सब हीमोफीलिया परिवार फैमिली को बताने में मुझे हर्ष और अभिमान हो रहा है कि ये जो लड़का है ये खुद हीमोफीलिक है, MBBS MD करके आज ESIC हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है. वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस डॉक्टर वेंकटेश. डॉक्टर वेंकटेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट वेबिनार में. आपका जो टॉपिक है लिविंग विथ हीमोफीलिया, आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू सो मच. Please, Nataraj, can you please share the slides? Yeah, thank you so much, brother. Yes, डॉक्टर दिख रहा है. हाँ, good evening all. Thank you Ramu sir, thank you Cecil sir, thanks to our president प्रेम भाई. आज मैं हीमोफीलिया लिविंग विथ हीमोफीलिया मतलब HFI की तरफ से बोलने को मिल रहा है. मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं आपसे वार्तालाप कर पा रहा हूँ. और बेसिकली मैं खुद हीमोफिलिक हूँ, तो मतलब जो जिंदगी में अपने तकलीफें आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे क्या ओवरकम कर सकते हैं और कैसे उसको डील कर सकते हैं. बेसिकली मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ आपको, आप सब डील कर ही रहे हैं. उसमें कैसे कुछ बेटर कर सकते हैं, हाउ कैन वी ओवरकम दिस चैलेंजेस with support, that's what I'm gonna talk. It is not a different thing. Okay, so we'll start it. Next slide please. Next slide please. Bye. Nataraj bhai. I think you have the control with you. No, actually it is I couldn't open with my iPad, so I have sent to Nattu. But he can give the controls to you, no? Actually it is, I have logged in with iPad. I
can't control it. Okay. I'll message you whenever. You want to start from this slide or from the next one? Next slide, next Slide number 3, right? yes. सो मैं डॉक्टर वेंकटेश हूँ। मैं पर्सन विथ हीमोफीलिया हूँ। मैं महाराष्ट्र के एक हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। और मतलब आप सबको पता है कि अपना 10 साल पहले 15 साल पहले कैसा कंडीशन था। हमारे यहाँ पे भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था और नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से मेरे को भी एंकल का डिसेबिलिटी हो गया है। बहुत सारा दिन स्कूल का मिसिंग हुआ है। लेकिन बाद में मैंने एमबीबीएस को एडमिशन लिया। मैंने केईएम से एमबीबीएस किया है और मैंने पीडियाट्रिशियन हूँ। मैंने सायन हॉस्पिटल से मुंबई से मैंने एमडी किया है। थ्रू आउट द जर्नी मुझे अपना हीमोफीलिया सोसाइटी मुंबई और एचएफआई का सपोर्ट मिला है, एसएल का सपोर्ट मिला है। तो इसकी वजह से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच और मैं मेरा प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट हमको बेसिकली लिविंग विथ हीमोफीलिया के लिए मुझे लगता है कि ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हीमोफीलिया। सो हमको अगर हीमोफीलिया के बारे में ही पता नहीं है तो हम कैसे बेसिकली ये कर पाएंगे कि आगे के बारे में, लिविंग के बारे में पता करें। Venkatesh, unmuted. सॉरी एक्चुअली तो लिविंग विथ नटराज, कैन यू प्लीज change the slide? Just put the Now next we are slide. on. Now we are on Yeah, the fourth. second slide, please. I'm sorry. That's okay. Second slide. And this is the one on the second. This is the first. We'll switch to next slide. Fourth. Natu bhai, maybe you have shared the wrong screen. Try to reshare. So मुझे पता है कि ऑलमोस्ट आप सबको पता होगा कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया मैं बहुत ही सिंपल बताने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे हेमाटोलॉजिस्ट इसके आगे ये वेब सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें वेबिनार के सीरीज, और उसमें वो आपको और डिटेल में बताएंगे। जैसे अभी सेसिल सर ने अपने को नॉन न्यूअर थेरेपीज इन हीमोफीलिया के बारे में बताया, ऐसे ये एचएफआई का जो नया इनिशिएटिव है कि हमारे सब पेशेंट्स को हीमोफीलिया के बारे में अवगत कराना और उसके बारे में हेल्प करना, उसके लिए ये जो वेबिनार का सीरीज चालू किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हीमोफीलिया अपने को सबको पता है कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और वो कंजेनाइटल है और जेनेटिक है। तो मतलब क्या है कि ये पैदा होने से ही आ जाता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक रहता है। और 30% पेशेंट्स जो ऐसे रहते हैं कि जिनको म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी होता है। तो हीमोफीलिया मतलब क्या होता है कि नॉर्मली एक बंदे का खून जो है वो अपने आप रुक जाता है अगर उसको चोट लगता है। तो उसको क्लॉटिंग के लिए, जो खून को गाढ़ा होने के लिए जो खून में जो प्रोटीन लगता है उसमें से एक प्रोटीन नहीं है, तो उसमें वो ब्लीडिंग रुकता नहीं है और ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम होते रहता है। तो लंबा टाइम जो ब्लीडिंग होता है उसको हम बोलते हैं कि हीमोफीलिया। तो अगर फैक्टर 8 नहीं है तो हीमोफीलिया ए बोलेंगे, और फैक्टर 9 नहीं है तो हीमोफीलिया बी बोलेंगे। साथ में ऐसे VWD फैक्टर रहता है, उसको भी अपन VWD वॉन विलेब्रांड डिसीज बोलते हैं। कुछ कुछ लोगों में ऐसे 13 नंबर का फैक्टर नहीं रहता है, कुछ लोगों में 10 नंबर का नहीं रहता है, कुछ लोगों में 7 नंबर का नहीं रहता है। तो ये अलग अलग टाइप के हीमोफीलियाज है। तो लक्षण तो आप सबको पता ही है कि जोड़ों में सूजन आती है और ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, और उसका ट्रीटमेंट अपने को जो फैक्टर नहीं है वो लेना है। नट्टू भाई, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सौरभ बघा ना तुम्ही जरा काय प्रॉब्लेम झाला. सौरभला मी शेअर करू का? सौरभ तू करू शकशील? सौरभला शेअर करा. हा मला शेअर करा, मला शेअर सौरभला करा. शेअर करा.
My sharing has been paused. I don't know how it got paused. सौरभ को ओके शेअर कर, ओके सौरभ कर हाँ देगा. व्हाट्सअप केलं सौरभ मी तुला. सौरभ बघा प्लीज लगा फास्ट करा. Okay, okay. 30 seconds. ओके. सो बेसिकली अपने को क्या है कि लिविंग विथ हीमोफीलिया मतलब क्या है कि अपने को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके साथ कैसे जीना है. अभी ऐसा है ना कि ये बीमारी अभी जैसे सर ने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए जीन थेरेपी लाएंगे और वो पूरा क्योर होगा कि पूरा बीमारी अपने में रहेगा ही नहीं. बेसिकली ये बीमारी है ये सोचना ही नहीं है हमको. हमको ये सोचना है कि किसी को अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज में मतलब क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बनता है. तो हमारे बॉडी में क्या है कि जो फैक्टर है वो नहीं बन रहा है. देखा जाए तो जेनेटिक डिसीजेस में से जो एकदम इजीली ट्रीटेबल बीमारियों में से एक है वो है हेमोफीलिया. क्योंकि क्या है ना कि जो जेनेटिक डिसीजेस रहते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है या कुछ कुछ है तो उसमें क्या है ना कि ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. लेकिन एक इतना सौरभ को परमिशन चाहिए शेयरिंग के लिए. सॉरी. Can you make me host? Co-host. Thank you. एक second. हम्म, एक 2 मिनट लगेगा. इधर ज्यादा है. मीन द टाइम 2 मिनट में हम लोग आप कैमरा ऑन कर दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ if possible. तो थोड़ा सा दिखेगा. हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद सबको देख रहा हूँ. गुड गुड. अरे वाह, दीपक सिंह भी है. दीपक सर. गुड. इंदिरा मैम नमस्कार. कविता जी गुड. नमस्कार रामू. नमस्कार नमस्कार मैम. नमस्कार रामू. नमस्ते मैम. प्लीज स्माइल में स्क्रीनशॉट लेता हूँ. 3, 2, 1. गुड. Recording in progress. सेकंड पेज के कैमरा नहीं ऑन कर रहे हैं. नो प्रॉब्लम. नहीं कर रहे. Meeting is reminding, sir. Recording is process. हाँ. यस, मीटिंग इज ऑलरेडी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसका. This is our talk, sir. प्रधान भाई. यस यस मैम नमस्कार. नमस्ते. ओ नेहा जी नमस्कार, कोलकाता से. नमस्ते सर. हाँ जी. वेरोनिका मैडम. सर अच्छा हो गया स्क्रीन शेयरिंग. चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उसमें जाते हैं वापस. प्लीज म्यूट कर दीजिएगा सब लोग. थैंक. हाँ तो ये इसके बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कशन किया है कि एक जेनेटिक बीमारी है और इसमें सिंपल सा इलाज है कि हमको जो फैक्टर कम है उसका इंजेक्शन लेना है. तो बेसिकली फैक्टर का लेवल जितना रहेगा उसके हिसाब से हमको हीमोफीलिया के बारे में जानना है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है. मतलब उसके हिसाब से लक्षण आएंगे. अगर समझो आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर तैयार ही नहीं हो रहा है, वो कम है, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा ब्लीडिंग होने का चांस है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सौरभ. So let me select.
हाँ, तो बेसिकली क्या है ना कि हमको लिविंग विथ हीमोफिलिया, हमको हीमोफिलिया पे ज्यादा बात नहीं करना है। अभी क्या है ना कि हमारी जिंदगी पूरी ऑक्यूपाइड है हीमोफिलिया के साथ, हम रोज रोज उस पे बातें करते रहते हैं। तो अभी हमको हीमोफिलिया के साथ जीने की आदत डालनी है, उसके लिए हमको जानना है। तो सबसे बड़ा चीज है कि हमको समझना है कि हीमोफिलिया के व्यक्ति को खुद को क्या क्या तकलीफ होता है। एक तो पहले डिसीज का बर्डन है। डिसीज का बर्डन मतलब क्या है कि उसको कभी भी ब्लीड्स होता रहता है। ब्लीड होगा तो जॉइंट में स्वेलिंग आएगा, फिर उसका पेन होगा, और स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही बैठे रह रहे हैं। उसकी वजह से अभी कहीं बाहर घूमने गए तो फिर उसमें डर लग रहा है कि कहीं मुझे ब्लीड ना हो जाए, उसका एंग्जाइटी है। तो मतलब डिसीज की वजह से खुद से बहुत सारा परेशानी हो रहा है। फिर दूसरा चीज क्या है ना कि अभी ये तकलीफ है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे, डिफिकल्टी इन एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। तो अभी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इतना सारा मेहनत किया, इसकी वजह से हमको बहुत सारा फैक्टर्स तो मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारा पूरा दुनिया अच्छा है और हमको सब जितना चाहिए उतना फैक्टर मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, ऐसा नहीं है, प्रोफाइलैक्सिस मिल रहा है। तो क्या है ना कि कुछ लोगों को भी ज्वाइंट ब्लीड होने के बाद वॉशरूम जाने के लिए नहीं जा पाते हैं, लेकिन उसमें अपने को ट्रीटमेंट के लिए 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, ट्रेन से, बस से, उसमें तकलीफ हो रही है। और वहां पे गए तो बहुत बार ऐसा होता है कि फैक्टर अवेलेबल भी नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। जिन लोगों को इनिबिटर है तो कभी फैक्टर 8 है, कभी फैक्टर 9 नहीं है, ये सब चीजें होते रहते हैं। तो और ऊपर से उसमें भी जाने के लिए कैसा रहता है कि अभी कहीं हॉस्पिटल में गए, बहुत भीड़ रहता है, वेटिंग टाइम है, बेड अवेलेबल नहीं है, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स चीज है, किसी को अगर आईसी ब्लीड है या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है, उसके लिए सर्जरी वाला प्लेस अवेलेबल नहीं है। तो इतने सारे ये डिफिकल्टीज है, तो ये भी एक अपने लिए अलग चैलेंज है। इंपॉर्टेंट चीज है जो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज मैं अभी हिमोफिलिया पे ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, हिमोफिलिया के रिलेटेड चीजों के साथ बात करने वाला हूँ, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। बीच में एक केएम में स्टडी हुआ था, उसमें से पता चला था कि हिमोफिलिया के पेशेंट्स को, सब पीपल को विटामिन डी का डिफिशियंसी कॉमन रहता है। दूसरा चीज ये है कि अपने को बार बार ब्लीड होते रहता है, और उसमें क्या होता है कि खून बह जाता है, उसकी वजह से अपने को बहुत बार अनीमिया होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। फिर क्या होता है ना कि अभी ऑलरेडी जॉइंट का तो डैमेज हो ही रहा है ब्लीडिंग की वजह से, तो जॉइंट का डैमेज हो रहा है, उसमें अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम ठीक नहीं है, विटामिन डी ठीक नहीं है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ते जाएगा। इसके लिए जो हमको न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है, फिर ऊपर से हमारा डाइट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोगों ने खाना बराबर नहीं खाया, एक तो हमारे लोग हैं कुछ बहुत ही पतले हैं, खाना ही नहीं खा रहे, बहुत ही पतले, या फिर कुछ ऐसे है कि अभी जॉइंट ब्लीड हो रहा है बार बार, तो घुटने खराब हो गए हैं, जॉइंट्स खराब हो गए, इसलिए उनका एक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से उनकी उनका वजन बढ़ गया। अभी ऑलरेडी जॉइंट डैमेज है, वजन बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके एक्टिविटी कम हो रही है, और जो ओबेसिटी की वजह से फिर फैक्टर का डोज भी ज्यादा लग रहा है, तो वो डिफिकल्ट हो जा रहा है मैनेज करने के लिए। और अभी नेक्स्ट थिंग है, हमारा प्रॉब्लम आता है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। मतलब क्या होता है कि एक जब कोई बीमारी आती है तो मुझे एक थॉट आया था कि ऐसे कि नो डिसीज अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल, इट अफेक्ट्स द फैमिली। मतलब क्योंकि हम अकेले तो नहीं रहते ना, कि हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, सिबलिंग्स रहते हैं। अगर किसी के घर में नया बच्चा आया तो वो पेरेंट्स को भी अफेक्ट करता है। अगर बाद में उसकी शादी हो गई हिमोफिलिक पर्सन की, तो उसके पार्टनर, उनके इन लॉज, ये सबको भी अफेक्ट होता है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या होता है कि अभी जैसे फैमिली में अभी किसी बच्चे को पता चला कि हिमोफिलिया है, तो उसके बाद क्या होता है कि दो रिएक्शन मोस्टली आती है। एक तो ऐसा रहता है कि उसको इग्नोर किया जाता है कि जाने दो, ये ऐसा ही है, इसको बीमारी है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका ख्याल नहीं रखा जाता है, और उसका कंडीशन खराब होता है। या फिर ऐसा रहता है कि ओवर प्रोटेक्शन, उसको क्या कर रहे हैं कि घर के बाहर ही नहीं जाने दे रहे, स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं, कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा है, हर जगह पे उसको ओवर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद द, लाइक ही हैज नॉट एक्सपोज्ड विद द आउटर वर्ल्ड। सो आई हैव सीन मेनी पीपल कि उनको ऐसा रहता है कि उनको बोला गया है कि बाहर नहीं जाना है, किसी के साथ खेलना नहीं है, किसी के साथ मिलना नहीं है, तो उससे भी उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अभी क्या है ना कि बुलिंग बुलिंग मतलब क्या होता है ना कि अभी जॉइंट खराब है, और बहुत सारे स्कूल्स में हमने देखा है कि अगर कोई, किसी को पैर का प्रॉब्लम है, कान का प्रॉब्लम है, किसी का कलर का प्रॉब्लम है, स्कूल के बच्चे उसको लंगड़ा बोलेंगे, काला बोलेंगे। और उसमें क्या होता है कि वो बच्चा जो हिमोफिलिक है, अगर यूजुअली तो खेल ही नहीं पाता है, और कभी खेलेगा तो वो पार्टिसिपेट अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से जो होता है कि उसको परेशानी होती है, तो लोग उसको चिढ़ाते हैं। और साथ में इन सब चीज़ों का परिणाम ये होता है कि हम में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। हम देखेंगे कि सोसाइटी की भी बहुत सारी मीटिंग रहती है, सोसाइटी की मीटिंग में हमारे ही लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई जो लोग रहते हैं वो कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाते। फिर एजुकेशनल और ऑक्यूपेशनल चैलेंजेस, तो ये सबसे बड़ा चीज है। एजुकेशन में अभी 4 दिन नहीं जा पा रहा है,
गया नहीं स्कूल में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो एक तो लिंक छूट रहा है, दूसरा उसका absenteeism हो रहा है। आज कुछ तो टॉपिक पढ़ा रहे थे, बीच में वो 15 दिन नहीं गया है, और 15 दिन के बाद नया कुछ तो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया गया था, बीच में लिंक टूट जाता है, और 15 दिन वो घर पे बैठ के पढ़ नहीं सकता है। सेम चीज होता है कि काम पे गए हैं और बाद में ब्लीड हो रहा है, बार बार छुट्टी हो रहा है, और छुट्टी होने की वजह से एक तो मालिक डांट रहा है, अपना सैलरी भी जा रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोगों ने नौकरी भी छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया है। और नेक्स्ट इश्यू है अपना डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज मतलब एक तो जॉइंट के बार बार ब्लीड होने की वजह से है तो है, लेकिन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से भी एक डिफॉर्मिटीज बहुत ज्यादा मिलती है। तो किसी का घुटना खराब है, किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट लग रहा है, जो चीज 60-70 साल में करनी पड़ेगी, अपने बहुत सारे हेमोफिलिक को 30-35 साल में करना पड़ा। अभी इम्पोर्टेंट चैलेंज है नेक्स्ट फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब ऐसा नहीं है ना कि अभी अगर समझो कहीं फैक्टर फ्री में भी मिल रहा है तो आप 10 दिन काम पे नहीं जाओगे, जाने आने का खर्चा लगेगा, तो ये चीज एक अलग बर्डन बन जाता है। तो वो जो लोअर मिडिल क्लास, मतलब ये चीज ये है कि ये बीमारी है कि अमीर लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे अभी मैंने डॉक्टर बोल के ज्वाइन किया है ESIC में, और मेरा सैलरी अगर 1 लाख रुपीज आ रहा है, तो फैक्टर मिलता है तो उसका कॉस्ट रहता है 1,40,000, तो मैं ही मतलब 40,000 मेरे को उधार लेना पड़ेगा अगर ट्रीटमेंट करना है। तो ये फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा बर्डन है। नेक्स्ट चीज है कि हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि फैमिली कुछ रहती है कि तो इग्नोर कर देती है या फिर बहुत ही ज्यादा केयर करना लग जाती है। दूसरा चीज है कि फ्रेंड्स बनाने में मुश्किल होती है, क्योंकि लोग, जैसे मैंने आप बोला कि बुलिंग करते हैं। और फिर लोगों को क्या रहता है ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अभी हमको रिलेशनशिप में जाना है नहीं, जो एडोलसेंट और यंग लोगों का प्रॉब्लम है कि लोग क्या सोचेंगे, कोई मुझे अप्रोच मतलब एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो और शादी करने में भी इश्यूज आते हैं। तो ये सब चीजों में अपना हिमोफीलिया अपने इंटरफेयर कर रहा है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हमको ये जानना है कि हिमोफीलिया में अभी ये तो व्यक्ति के ऊपर हो गए, तो अभी इसको हमको जानना है कि ऐसा नहीं ना कि जैसे मैंने बोला था कि डिसीज अफेक्ट्स फैमिली, इट नॉट डजंट अफेक्ट ओनली एन इंडिविजुअल। सो व्हाट हैपेंस टू आवर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड स्पाउस। सो सबसे बड़ा चीज रहता है ना कि लोग डिनायल में चल जाते हैं कि ये बीमारी नहीं है, हमको ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि वो मानने लगते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, एक डिजास्टर आता है। डिजास्टर मतलब क्या है कि अभी अचानक से आपका बच्चा है, अभी 1 साल का है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और अचानक से आपको पता चल रहा है कि उसको कुछ तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और उसका लाइफ टाइम कुछ क्योर नहीं है। तो फिर वो एक तरह से डिजास्टर जैसा आ जाता है कि अचानक से ये क्या हो गया। तो फैमिली पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और फिर उससे क्या आता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। जो कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल को ब्लेम किया जाता है क्योंकि फीमेल कैरियर है, तो उसकी वजह से जो रिलेशन है वो फैमिली के अंदर, उनके इन लॉज के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, तो वो चीजें पूरी डिसरप्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली टूट भी जाती है, लोग डिवोर्स ले लेते हैं। तो और अगर उसके बाद भी, जैसे मैंने बोला कि डिस्फंक्शन, डिस्फंक्शन मतलब क्या है कि पापा काम पे नहीं जा पा रहे हैं, या फिर मम्मी बच्चे के ख्याल नहीं रख पा रही है, उनका डेली रूटीन अफेक्ट हो रहा है। तो हर किसी का डेली रूटीन अफेक्ट होता है, तो पूरा फैमिली डिसफंक्शनल हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सोशल स्टिग्मा। अभी क्या है ना कि अपना सोसाइटी में कभी कभी अगर किसी को बोल दिया कि इसको बीमारी है, तो लोग ऐसा सोचने चाहते हैं कि ये बीमारी मेरे बच्चे को भी होगा क्या। स्कूल में भेजेंगे तो टीचर भी वहां पे डर के रहेगा, वो भी बोलेगा कि इसको यहाँ पे मत भेजो, इतना खतरनाक बीमारी है, जो कि है नहीं, इतना खतरनाक बीमारी नहीं है अगर हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो ये सोशल स्टिग्मा एक चीज है, बहुत बार लोग बताते ही नहीं है कि हेमोफीलिया क्या है हमारे बच्चे को। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ओवर प्रोटेक्शन, निग्लेक्ट। तो उसके बाद एक है बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल इश्यूज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिमोफिलिक है उसको ही परेशानी हो रही है, अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, उसके पेरेंट्स को भी टेंशन आ ही रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनको भी स्ट्रेस रहता है कि अरे बच्चे को ब्लीडिंग हुआ, तो अगर अचानक से खर्चा लगा तो खर्चा लग जाता है, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन आ जाता है। तो उसकी वजह से अलग ये रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या फिर वो खुद को कोसते हैं कि मेरी ही वजह से मेरे बच्चे को ऐसा हुआ, इसमें मेरी ही गलती है। सो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। फिर क्या होता है ना कि जो अपन सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पे भी अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। कि ऐसा रहता है कि अभी हिमोफिलिक बच्चा है जो अपन कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ के बच्चे उसको खेलने को लेंगे नहीं लेंगे, वो लोग उसको हटाते हैं कि नहीं आप दूर रहो, और आप इसको ख्याल रखो, हमारे साथ मत खेल, ब्लीडिंग होगा तुझे। और स्कूल वर्क प्लेस में भी यही होता है कि आप बार बार जो पेरेंट्स को, मतलब अभी बच्चा हिमोफिलिक है उसको वजह से छुट्टी ले रहे हैं वो लोग, और कभी ऐसा रहता है कि ब्लीड हुआ, मैं आधा घंटा जाके आता हूँ, 1 घंटा जाके आता हूँ, तो उनको भी अफेक्ट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी ये बच्चे को हेमोफीलिया हुआ तो नेक्स्ट बच्चे का क्या।
तो उसको भी हीमोफीलिया होगा नहीं होगा और आगे क्या होगा। और ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया कि फाइनेंशियल बर्डन है। नेक्स्ट भाई। सौरभ भाई। तो अभी हमको मतलब हमने जैसे पहले बोला था कि सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास में ट्रीटमेंट का। तो हमको ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको ये एक्सेप्ट करना है कि हमको हीमोफीलिया है और हीमोफीलिया का ये इलाज फैक्टर्स है और ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। जब तक जीन थेरेपी आएगा तो कुछ हो सकता है, लेकिन उसको शायद कुछ टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी वो मैनेज नहीं कर पाते, मैनेजेबल है। जैसे आज से 10 साल पहले कुछ भी, 15 साल पहले कुछ भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था अपने पास। क्रायो था, फैक्टर था, लेकिन एक्सेसिबल नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो अपन बहुत सारे हेमोफिलिक्स के जॉइंट डैमेज हो गए। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि, और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि एज अ हीमोफिलिक जब हमको ब्लीड होता है ना, तो हम डरते हैं। बच्चा डरता है कि मैं बोलूंगा कि मुझे ब्लीड हुआ है तो मम्मी पापा डांटेंगे, तू खेलने गया था इसकी वजह से हुआ, तुझे किसी ने धक्का मारा इसके लिए हुआ। फिर हम वर्क प्लेस में रहते हैं, काम पे है, तो हमको लगता है कि अभी मैं मेरा काम खत्म करता हूँ, मैं अगर अभी ब्लीडिंग के लिए ट्रीटमेंट लेने जाऊंगा तो मेरा बॉस चिल्लाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको जानना है कि ब्लीडिंग हुआ है, और उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद हमको उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है जल्दी से जल्दी। अगर समझो आपको कुछ प्रॉब्लम है कि अभी समझो जॉइंट ब्लीड हो गया, नी में स्वेलिंग आ गया है, एंकल में स्वेलिंग आ गया है, आप क्रेप बैंडेज लगाओ, क्रचेस यूज करो। अगर हॉस्पिटल जाना है तो मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए 50 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, जो भी डिस्टेंस है, आप क्रचेस यूज करो। आपको अगर खुद से नहीं हो पा रहा है, आपके फ्रेंड को हेल्प मांगो, आपके फैमिली को हेल्प मांगो। प्रॉब्लम ये होता है कि हमको ऐसे लगता है कि हम किसी को बर्डन नहीं बनना चाहिए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके लिए हम मानते नहीं है, और उसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट डिले होता है। सबसे बड़ा फैक्टर, वो तो गवर्नमेंट का फैक्टर अलग है कि भाई फैक्टर अवेलेबल नहीं है, दूर है, वो चीजें अलग है। लेकिन हमारी खुद की गलती है कि हम जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं लेते। हम बोलते हैं कि नहीं, यहाँ एलकेमी है, हो जाएगा। ये हमको नहीं करना है। फिर हमको क्या करना है कि ट्रीटमेंट में क्या होता है कि बहुत बार अपने पास कभी कभी फैक्टर रहता है तो हमको लेने नहीं आता है, पेरेंट्स को देने नहीं आता है। और कभी कभी ऐसा रहता है कि वहां पे भी डॉक्टर्स और नर्सेस इतने बिजी रहते हैं कि अगर आपको आता है तो आपके हाथ में देख के, फैक्टर देख के बोल सकते हैं कि यू कैन टेक, प्लीज टेक। तो इसके लिए हमको फैक्टर इन्फ्यूजन सीखना है, सेल्फ इन्फ्यूजन हो या फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक रेस्ट। अगर समझो आप काम कर रहे हो और काम करते वक्त आपको ब्लीड हो गया और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, और उसकी वजह से आपका जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया, तो आप 8 दिन काम पे नहीं जा पाओगे। लेकिन आज आपने फैक्टर लिया, आज आपने रेस्ट किया, तो आप 1-2 दिन में रिकवर हो करके आप वापस काम पे जा सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको रेस्ट लेना है। दूसरा चीज ये है कि अपने पेशेंट्स के पास रिकॉर्ड ही नहीं रहता है। मतलब कौन सा इनहिबिटर टेस्ट कब किया था, कब फैक्टर लिया, कौन सा फैक्टर लिया, कुछ भी पता नहीं। तो HIV का टेस्ट कब किया था, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कब किया था, ये सब रिकॉर्ड, वैक्सीन कब लिया है, ये सब रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको ट्रीटमेंट के लिए, जैसे हमने बोला, अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट के साथ काम करना है, उनके साथ डील करके हमको फैक्टर का ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर वर्किंग विथ हिमोफिलिया सोसाइटी, देन like you are working for others. So if you work for the people, for the organization will work for you. ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग बात नहीं है, ठीक है। सो हमको सोसाइटी के लिए काम करना है, और सोसाइटी में काम करेंगे तो हम सबके लिए काम करेंगे, और सबका अगर ट्रीटमेंट मिलेगा तो हमको भी ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको जो साइको सोशल फैक्टर है, कि बिहेवियरल इश्यूज है, उसके लिए हमको क्या करना है। तो मैंने ऐसे देखा ना कि मैं बचपन में खुद ही सोचता था कि मुझे ही क्यों हुआ, मेरे ही फैमिली में क्यों आया। तो हमारा सब चीज रहता है ना कि अभी ब्लीड होना था क्या, अभी क्यों हुआ, मैं कुछ कल कल प्रोग्राम जाना था। सो वी ऑलवेज आस्क कि व्हाई, क्यों हुआ। तो ये हमको नहीं पूछना है। हमारा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट्स के काउंसिल करता हूँ जिनका ट्रीटमेंट नहीं है, तो उनको मैं यही चीज बोलता हूँ कि आप ये मत सोचो कि अभी क्यों हुआ है, उसका आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। वट एवर इट इज दैट यू हैव गॉट अ हीमोफिलिया एंड यू हैव टू डील विद इट। सो वंस यू एक्सेप्ट दैट दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व इट, देन ओनली यू कैन गो अहेड। जब तक आप बोलोगे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, और क्यों क्यों के पीछे जाओगे, तो आप ट्रीटमेंट चालू करना नहीं शुरू करोगे। तो आस्क व्हाट कैन बी डन एंड हाउ कैन बी डन। अगर आपको पता चला कि हाँ मुझे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मेरे बेटे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मुझे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए क्या करना है। तो जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हमको रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है, जल्दी से रिकॉग्नाइज करना है,
उसमें रिकॉग्नाइज में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से वाले ब्लीडिंग के लक्षण क्या होते हैं। अगर आईसी ब्लीड हुआ तो क्या होता है, तो वोमिटिंग आता है, फीट आ सकता है, और हेडेक हो सकता है, हिस्ट्री कुछ मार लगने का हिस्ट्री रह सकता है, तो ये रिकॉग्नाइज करना। दूसरा चीज, हमको अगर पेट में ब्लीडिंग हुआ तो क्या होता है ये रिकॉग्नाइज करना है। उसमें हमको क्या होता है, तो काला संडास होता है, पेट दर्द होता है, उल्टी होता है, तो ये लक्षण हमको रिकॉग्नाइज करना है। जॉइंट ब्लीड हुआ तो स्वेलिंग होता है, पेन होता है, और वो गर्म हो जाता है हिस्सा, तो ये हमको रिकॉग्नाइज करना है। तो अब उसके लिए क्या करना है ये हमको आगे पता चलेगा कि हमको क्या करना है। तो फैक्टर लेना है, रेगुलरली लेना है, प्रोफाइलैक्सिस मिलेगा तो बेस्ट रहेगा, जॉइंट का एक्सरसाइज करना है, ये सब चीजें हमको पता चलेगा। अभी फिर ट्रीटमेंट लेना है तो कैसे लेना है, कैसे लेना है, तो अगर गवर्नमेंट में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो सोसाइटी का हेल्प लेना है। तो इसीलिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन बदलना है, वाई नहीं पूछना है, हमको पूछना है हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको सिंपथी और एम्पथी के बीच में डील करना पड़ेगा। सिंपथी मतलब क्या होता है कि अरे रे कैसा इसको बीमारी हो गया है, लेकिन दूसरा चीज एम्पथी मतलब क्या होता है कि उसमें आप समझ रहे हो कि सामने वाले को क्या दर्द हो रहा है और उसको आप उसके हिसाब से हेल्प कर रहे हो। ऐसा नहीं कि उसको जॉइंट में ब्लीड है और आप सिर्फ आप ही सब कर रहे हो, हिमोफीलिया पता चल रहा है आप ही उसको उठा के रख रहे हो घर में, जैसे मैंने बोला कि ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये चीज नहीं करना है। हमको समझना है कि उसको तकलीफ है, उसको दर्द है, और उसको जो जो हेल्प कर सकते हैं वो बोलेगा उतना हेल्प करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज है साइकेट्रिक, हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एंग्जाइटी होता है, हमको डर लगता है, उसके लिए हमको एक ग्रुप बनाना है। ऐसा लगता है कि मुझे ही ये बीमारी हुआ, क्यों हुआ, तो अगर हम पूरा ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के काम करेंगे, यूथ ग्रुप है, वुमेन्स ग्रुप है, अपना सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम डिस्कस होते हैं, उसमें सोल्यूशन आता है। मुझे एक ब्लीड हुआ था, उसमें क्या किया था, तुमने क्या किया, प्रॉब्लम क्या है, वो सब डिस्कशन होके हमको एक अच्छा बिहेवियरल इश्यूज में हेल्प हो जाता है, हमारे दोस्त भी बन जाते हैं। तो कम्युनिकेशन और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मैंने बोला कि आप कम्युनिकेट करो, आपको ब्लीड है आप बताओ, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को बताओ, और जब तक आप बताओगे नहीं तो कोई आपको हेल्प कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन। तो हिमोफीलिया पेशेंट्स बोलो, पेरेंट्स बोलो, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन। एजुकेशन किस किस बात का होना चाहिए, तो अबाउट द डिसीज, हमको बीमारी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि हमारे सारे बहुत सारे हिमोफिलिक्स है, उनको पता ही नहीं कि हिमोफीलिया क्या है, उसके अलग अलग टाइप क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो नहीं पता, कहाँ ब्लीड हुआ तो कैसे लक्षण आते हैं वो नहीं पता, ट्रीटमेंट कहाँ मिलेगा वो नहीं पता, इनहिबिटर क्या होता है, अभी हिमोफिलिया का ट्रीटमेंट नहीं किया तो तकलीफें क्या होती है, अभी इसको आगे रोका कैसे जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस नहीं पता है हमको, स्विमिंग का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, तो ये चीजें हमको जानना जरूरी है। अगर आपको ही हिमोफिलिया के बारे में पता नहीं है तो आप बाहर जाके अवेयरनेस करने का कोई मतलब नहीं। हमारे सब हिमोफिलिक को ये बातें पता होनी चाहिए कि मुझे एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसका ट्रीटमेंट फैक्टर लेना है, और अगर मैं सही तरीके से फैक्टर लूंगा, फिजियोथेरेपी करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरा डिसीज कंट्रोल में रहेगा। और प्रिवेंशन के बारे में अब बाद में बात करते हैं, ठीक है। स्कूलिंग एंड कॉलेज, अभी दूसरा चीज ये है कि एजुकेशन मतलब सिर्फ बीमारी का नहीं है, तो हमारा जो नॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एज ए हिमोफिलिक हम तो बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हेवी काम है, अगर आपको बोलेंगे कि फिजिकल वर्क करो तो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको ब्रेन का दिमाग यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कुछ अच्छे कॉलेज से पास होके कुछ प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, आप फार्मेसी कर रहे हैं, नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आपको अर्निंग में हेल्प होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको एजुकेशन होना चाहिए राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गवर्नेंस के। जैसे होता है ना कि कोई कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो हमको हमको पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है। हमको वहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हमको वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, स्टेयर्स अगर है तो हमको वहाँ पे लिफ्ट भी अवेलेबल होना चाहिए, हमको व्हील चेयर मिलना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा आप मांगोगे नहीं और कोई आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए जानना है कि हमारे राइट्स क्या है। और अभी समझो कोई हिमोफिलिक है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स है, जो डिसेबिलिटी में भी अभी हिमोफिलिया का इंक्लूजन हुआ है, ये हमको पता होना चाहिए कि हम डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी हमको एजुकेशन होना चाहिए। और लास्ट चीज जो है कि अवेयरनेस अमंग सिटीजन एंड पॉलिसी मेकर्स, जैसे हमको एजुकेट करना है लोगों को, लेकिन किसको करना है, तो हमारे हेमोफिलिक को और हमारे पॉलिसी मेकर्स को, जो हमको देश का जो स्टेट का है पॉलिसी बना रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हिमोफिलिया क्या है, क्योंकि वही फिर पैसे देंगे फैक्टर के लिए। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एक तो डिसीज के बारे में पढ़ाई करनी है, और तीसरा चीज है हमको हमारे राइट्स पता होने चाहिए, और चौथा हमको लोगों को भी बताना है कि हिमोफिलिया क्या है। स्कूल टीचर को पता होना चाहिए, आपके सराउंडिंग में पता होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिलेशनशिप्स, जैसे हमने बोला कि हिमोफिलिया में क्या होता है कि रिलेशंस भी अफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, तो वही चीज है कि ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना है। आप अगर सच्चाई और प्रॉपरली बताएंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और उससे आपका रिलेशन भी स्ट्रांग होगा। जैसे हमने बोला कि सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, आपके दोस्त हो, आपकी फैमिली हो, आपके नेबर्स हो, या अपना सोसाइटी है, ये भी सपोर्ट नेटवर्क आपका अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको रिलेशनशिप अच्छे से हो मेंटेन कर पाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या है कि हमको अगर आप भी फिट है, आपकी पूरी फैमिली फिट है, मतलब ये पूरा फैमिली का एक इश्यू है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो एज अ फैमिली हमको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि हमारे सब हिमोफिलिक जाके क्रिकेट खेले, लेकिन अगर उसको प्रोफाइलैक्सिस नहीं मिल रहा है, अगर उसको कुछ चीजें नहीं है अवेलेबल, फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो वहां पे ये चीजें करना डेंजर हो सकता है। तो हमको ऐसा नहीं कि हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे, ये चीज हमको नहीं सोचना है। हमारे जो लिमिटेशंस है उसके साथ हमको जीना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को लगता है कि अगर मैंने शादी किया, मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा तो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ इश्यूज आएगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है। आपका नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ रह सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा है कि जो एक नेक्स्ट चाइल्ड के बारे में पूछा, तो अगर आपका पहले बच्चे को हिमोफिलिया है तो आपका नेक्स्ट बच्चे के हो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको टेस्ट करके पता चल सकता है कि होने वाले बच्चे को हिमोफिलिया है कि नहीं। इसके बारे में आपको आईसीएमआर केईएम के इधर पूरी जानकारी मिलेगी। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप सोसाइटी में कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर समझो हिमोफिलिक है तो उसके बेटे को हिमोफिलिया नहीं होता है, उसकी बेटी जो रहती है वो वाहक होती है, यानी उसकी बेटी के बेटे को होने का चांस रहता है। तो हिमोफिलिक के बच्चों को हिमोफिलिया नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है। और लास्ट चीज है कि प्लान्स फाइनेंसेस एंड बी अवेयर ऑफ इंश्योरेंस एंड स्कीम्स। आपको अपने पैसे का पूरा ध्यान रखना है कि हम पैसे कैसे ये करेंगे, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड रखना है, ब्लीडिंग या फिर कुछ इमरजेंसी आएगा इसके लिए। अभी गवर्नमेंट ने 1 साल पहले इंश्योरेंस देने के लिए रूल्स बनाया है डिसेबिलिटी पीपल के लिए। उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इंश्योरेंस दूसरा कौन सा है कि गरीब लोग है, 5 लाख के नीचे इनकम है, उनको पीएमजेएवाई में इंश्योरेंस मिलता है, उनको एमपीजेएवाई महाराष्ट्र में है वो स्कीम में मिलता है। तो ये सब स्कीम्स के बारे में हमको जान के रहना है, तो हमारा फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो लास्ट चीज है अब ये, और ये है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने बोला कि इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली को क्या प्रॉब्लम है, और उसको कैसे डील कर सकते हैं, तो ये सब में सबसे बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है अपना ऑर्गेनाइजेशन। हिमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया है, हमारे चैप्टर्स है, ये सबने मिलके काम किया, तब जाके आज इतना महंगा ट्रीटमेंट हमको आज फ्री में मिल रहा है। तो आज जो भी मिल रहा है इसकी वजह से, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आज जहाँ पे है हम वो बेस्ट है, नहीं है, हमको और भी आगे जाना है। तो अगर आगे जाना है तो हमको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के मिलके काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमको हमारे एम्स बनाने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे, और गोल। हमारा जैसे कि एम है कि हमको सबको ट्रीटमेंट मिले, घर पे ट्रीटमेंट मिले, प्रोफाइलैक्सिस मिले, और ये सब चीजों के लिए हमारे बच्चों को स्कूल में मदद मिले, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिले, ये सब चीजें जो है हमको उसको मिलके काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, और अलग अलग डिपार्टमेंट, डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट अलग चीजों के साथ काम करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग चीजों के लिए काम करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग चीजों के लिए काम करता है। तो ये सब चीजों के साथ मिलके काम कर सकता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना है। और जब ऐसे पता चलेगा कि कोई तो अपने हिमोफिलिक और सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं अभी डॉक्टर बन के आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे सामने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे कि अरे हाँ इन्होंने ऐसे किया है तो हम भी कर सकते हैं, वो विश्वास आता है। एक नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड में हमेशा से रखता होता हूँ, और बचपन से मेरा ये फेवरेट पोएम है। मराठी में लिखा है कि देने वाले ने देते जाना चाहिए, लेने वाले ने लेते जाना चाहिए, और एक दिन देने वाले के हाथ लेने चाहिए। मतलब अगर आप आज हेल्प मिल रही है, आपको हिमोफिलिया सोसाइटी से मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, आपके किसी फ्रेंड से मिल रही है, तो एक दिन आप भी किसी और की हेल्प करो। तो जब तक आपको अभी ऐसा है ना कि हम सोसाइटी से जुड़े हैं, हमको कुछ तो मिल रहा है इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि
सिर्फ हम ही लेते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप भी सोसाइटी के लिए काम करो, आपके दूसरे जो हीमोफिलिक भाई लोग हैं उनके लिए काम करेंगे, तो अपना सबका हेल्प होते जाएगा। तो नेक्स्ट फोटो प्लीज। तो ये मेरा फोटोज है, आप देख सकते हैं मेरा राइट एंकल का पूरा डिसेबिलिटी था, मैं क्रचेस लेके चलता था, लेकिन मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमडी किया और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ अभी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस बैकग्राउंड से लेके आज यहाँ तक आया हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि मैं खुद से आया हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे का हेल्प लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आप देख सकते हैं हमारे महाराष्ट्र में हमने लास्ट ईयर एडवोकेसी का काम चालू किया। ये हमने एडवोकेसी का वर्कशॉप किया, उसके लिए प्रेम भाई आए थे। उसके बाद हमारे आरसीसी ये वीपीडी रामू सर थे, हमारे आरसीसी बालश्रीराम सर, हमारा दोस्त सौरभ, हमने मिलके सबने एक मीटिंग किया कि हम महाराष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर हमने हमारे जो हेल्थ के सेक्रेटरी है उनसे मिले, उसके बाद एनएचएम के जो आईएएस एमडी थे उनको मिले, अभी रिसेंटली हम अभी महाराष्ट्र के जो डिसेबिलिटी मिनिस्टर है उनको मिले और उनको भी हमने फैक्टर सपोर्ट के लिए मांग किया। इन सबका जो रिजल्ट था वो ये है कि महाराष्ट्र में लास्ट ईयर सिर्फ 9 ट्रीटमेंट सेंटर्स थे 36 डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आज ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स विल हैव ट्रीटमेंट सेंटर्स। तो ये रिजल्ट आता है कि अगर हम सब मिलके काम करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आप फोटो देख सकते हैं, हम सब लोग हैं लास्ट ईयर मिले थे और आज इसकी वजह से हमारे सबके पास 36 डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट सेंटर है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो ही हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। और लास्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे सब लास्ट भाई, ये सब आपको सब लोग पता है। ये अपूर्व है राइट में, वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है। संतोष है, वो खुद एंटरप्रेन्योर है। हमारा सौरभ है, एंटरप्रेन्योर है। हर्षल काले हमारा डब्ल्यूएफएच का पूरा रीजनल मैनेजर है साउथ ईस्ट एशिया का। परेश भाई है जो खुद अपना कंपनी चलाते हैं। और ये हमारे सब सक्सेसफुल हीमोफिलिक्स है जो जिनका हमने फेलिसिटेट किया था उनके सक्सेस के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, और आपको कुछ हेल्प लगता है तो आप अपनी सोसाइटी से मांगिए, एचएफआई से मांगिए और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एडवोकेसी के लिए काम किए, एक दूसरे के लिए काम कीजिए, और कुछ भी तकलीफ रहता है तो एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू डॉक्टर वेंकटेश। आपने सही कहा, आप भी इस फोटो में आ सकते हैं। डेफिनेटली मेरे पास हाथ में जो हीमोफिलिक्स आज है जो एक अच्छे लेवल पे है, वो सब सोसाइटी के लिए काम करेंगे और इस फोटो में नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आपको उनको ऐड करना है। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर वेंकटेश। आपने सही एकदम इंफॉर्मेटिव सेशन, बेस्ट हमारे लैंग्वेज में आपने समझाया, क्योंकि आपको पता है हमारी लैंग्वेज, क्योंकि आप हमारे परिवार से है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चंस है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ को कि आपको कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर सुशील सर के लिए, डॉक्टर वेंकटेश जी के लिए है तो प्लीज आप ले लीजिएगा। कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हम लेते हैं, उसके बाद आप support@hemophila.in में आपके क्वेश्चंस आप लिख दीजिएगा डॉक्टर सुशील सर को, डॉक्टर वेंकटेश जी को, वो आपके क्वेश्चन का मेल के द्वारा भी जवाब आपको मिल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ प्लीज, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज ले लीजिएगा सौरभ। I have a question to देखिए वेंकटेश, ऐसा है कि what you Yes, sir. said is absolutely true, and you know, and you showed the pictures of Harshal and all the rest of the people. Okay, as a HFI, part of the HFI, as a part of youth group, I think that also, which I feel is very important, you should be a role model for the children who have got all those issues that you spoke about. Okay, कि ये बच्चे आजकल जो है, they will not have to go through what you went through, and you Yes, have to sir. tell them, see man, with all these difficulties, I am here. What is wrong with you? Okay, Yes, sir. so ऐसा मैसेज देना चाहिए ये बच्चों को, that is one which is empowering the children and the adolescents to be able to manage their show and tell them that, you know, if I can do it, you can do it, ऐसा टाइप का।
See, Yes, as a sir. doctor and as a doctor and as a person who had not seen any hemophilia, and I don't have any hemophilic in the family. Okay. So I was also on the same impression that as a doctor, okay, I mean a doctor maybe of about 15, 14, 13, 14 years in the field. Okay, that I was also saying that a child with hemophilia cannot go to school, cannot do this, cannot do that. It's not good for him to do sports, contact sports, whatever. As a doctor, I was saying that. Okay, till I got to know one of our own person with hemophilia who was a remarkable guy, who was that guy was a big role model for all the children. I said, man, what the hell is wrong with you, man? If I'm in there like that, you can do like that kind of thing. And he used to give these kind of positive vibes to all. And then I got influenced by that, and I started advising the children, man, this is no big deal, man. It's after all one of those diseases, you have to handle the show. So Yes. sometimes even the doctors also will have a negative vibe based on the family, because after all, doctors are also human beings. So they will Yes. also feel that, it's correct what the parent is doing, what the child is doing, and that sort of thing. And therefore, you have to have, each chapter, you must have a role model which children will look up to, and then they will say, I should be like that. No, Yes, that's sir. the message that you have to give, and see to it that they don't go through the stuff that you went through. Yes, And they sir. should Yes, not sir. go through the problems that you are saying and say, if I can Yes. solve the problem, anybody can solve the problem. That sort of messaging must go, and that is very much important as a hemophilia community, as the most important job of HFI is to empower people to be able Yes. to live as normal life as possible. That's the only thing. The factor there or not, that's not the point. Is one of the important things is to empower each other to be able to say that I can live. Yes, Okay. sir. And if I can do Yes. that, you can do it. That sort of message. Yes. That's what I wanted to share, sir. That I went where the place where I have come from, it doesn't have availability of factor, Correct. and I'm sorry. Yeah, but as a doctor, I get as emotional a whenever social I youth talk group, about those things. I yeah. had just because of unavailability of factors, I had my ankle problem. I had disability. I was in my home for 2 years without any support. I was traveling to Mumbai repeatedly, once month, twice month, and after that, I had lost all the hopes. When I gave my CET for MBBS CET, I had gone with a plaster. I had a plaster on my leg. I was operated in KM, and I came to Mumbai for admission. That time I slept in KM ward outside the lift. So I If have you come tell the all those story to things, a child who's and got this, who's depressed and all, that fellow will get and the empowered. thing is that the thing in my MBBS days, we didn't have factor availability. Mumbai chapter and Maharashtra have fought it, and they got the availability of factors. वंस एक बार तो मैंने पैथो का एग्जाम में मेरा क्वेश्चन पेपर छोड़ के आया, उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना भी सीख लिया क्योंकि ब्लीड होता है, टारगेट जॉइंट था मेरा। और एमबीबीएस एमडी में भी बहुत सारा तकलीफ हुआ, और इसके लिए तो आज मैं एडवोकेसी का काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमने गया है वो हमारे दूसरे नेक्स्ट जनरेशन ने नहीं जाना चाहिए। और उसमें हमारा सब एचएफआई ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, हमारे चैप्टर्स ने सपोर्ट किया है, और वही रिजल्ट है कि आज हम 36 सेंटर्स देख पा रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सबको कि आप भी अपना प्रॉब्लम्स को ओवरकम कीजिए, आपका सोल्यूशन मिलेगा। आप प्रॉब्लम पे फोकस मत कीजिए, सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, सोल्यूशन मिलेगा, और आप एक दूसरे का हेल्प करके हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। The future is bright for all the hemophilians because with all the newer therapies that are coming in, you don't Yes. have to be bothered. Once a month, in 2 months, a shot. Yes sir. Good. Yes sir. So the future is very bright. And, Yes sir. Yes sir. It is better than people with diabetes, better than people with hypertension. Yes sir. Yes sir. Things like that. Life is good. Yes sir. One request I wanted to tell people is that कि अभी हीमोफिलिया में नया रिसर्च, मतलब हम सब हीमोफिलिया के ऊपर फोकस्ड है, लेकिन अब हमको ना लाइफ के एज रिलेटेड डिसीज पे भी फोकस करना चाहिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके ऊपर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या ना कि सबको वजन ज्यादा है, उसकी वजह से डायबिटीज हो रहा है, उसके भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो हमको उन चीजों का भी ख्याल रखना है, और उसके लिए अच्छा डाइट रखना है हमको। So with the newer therapies, you are near normal. Okay.
Yes. So you can go gymming, you can go swimming, you can do exercises, you can walk about, play about, talk about, no problem. So that Yes, is what is great about the therapeutic advances in hemophilia. No, yes, it is a bright future. It's not a... yes, sir. Question? Anyone? एक क्वेश्चन था ईएसआईसी स्कीम के बारे में किसी ने पूछा था, तो ईएसआईसी के बारे में शॉर्ट में जरा बताएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को ईएसआईसी कैसा इम्प्लीमेंट करना है, बेसिकली ईएसआईसी में ज्वाइन ईएसआईसी कैसा होने वाला है। ईएसआईसी का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मतलब क्या है ना कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये स्कीम जो है वो कामगार लोगों के लिए है, ये कामगार लोगों के हॉस्पिटल रहते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि कोई अगर कोई आपका कंपनी है समझो, और कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो उनको ईएसआई का बेनिफिट लेना पड़ता है। अगर उसमें जो कंपनी में लोग काम करते हैं उनको ईएसआई का बेनिफिट मिलता है। उसमें 5 बेनिफिट्स रहते हैं: मेडिकल, सिकनेस, डिसेबिलिटी और मैटरनिटी। और 5वां एक फ्यूनरल बेनिफिट रहता है। तो ये बेनिफिट्स में ऐसा रहता है कि अगर आपका सैलरी 21,000 के नीचे है तो आपका सैलरी का 0.75% पैसा गवर्नमेंट को जमा होता है, और जो आपका बॉस है, आपका एम्प्लॉयर है, उसका 3.25% पैसा जाता है। तो मिलके 4% सैलरी जो है वो जमा होता है गवर्नमेंट को। उसके बदले में आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री में मिलता है। अगर आपका नया कार्ड बनता है उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट मिलता है, और आपके बच्चे के लिए अगर चाहिए तो 1 साल के ट्रीटमेंट आपका कंट्रीब्यूशन के बाद, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन के बाद उनको ट्रीटमेंट मिलता है। यस, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सुशील सर के लिए एक क्वेश्चन था। शॉर्ट में सर प्रोपेलैक्सिस के रिगार्ड में क्वेश्चंस सिमिलर आ रहे हैं, तो शॉर्ट में प्रोपेलैक्सिस ट्रीटमेंट के बारे में जरा सर प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चों के पेरेंट्स भी हमारे साथ में जुड़े हुए। तो प्रोपेलैक्सिस ट्रीटमेंट क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन ही है, नॉर्मल, बट जरा ब्रीफली बता दीजिए सर प्लीज, डॉक्टर सुशील सर। तो प्रोफिलैक्सिस ऐसे है कि the first thing is prophylaxis in children. Okay. Prophylaxis in children is very important because the most important thing is parents motivate होना चाहिए. Okay. तो हम ऐसा करते हैं बैंगलोर में कि बच्चा लोग स्कूल जाता है और we have to see that attendance is not suffering. So what we do is you take a shot on Wednesday and you take a shot on Saturday. Saturday is usually free, so that the child can be near normal in school and at work and in studies. So we start somewhere around about 10 units per kg. जो समझो बच्चे को 20 kg ऐसा टाइप का है, so you give a 10 mg per kg, and if 4 or 5 children come together at the same time, then you can share the vial. If the vial is 2,000, 3,000 units का है, then you can share the vial and be done with it. So एक प्रोग्राम ऐसा बना सकते हैं. The point is that children should come at the same time and take the shot, maybe half an hour this way, that way. उसकी बात यह है कि parents can be taught self-infusion so that they can themselves give the treatment at home. And at least once a week, if they are able to manage at home, then the other week they can come to the hospital, like a Saturday or so. And parents should also realize that the chances of developing inhibitor are there, and that you have to monitor after every 10 exposure days to check for inhibitor, so that you are picking up early inhibitor so that we can manage the inhibitor. So these are the simple things that one has to do. And if you have got access to factor extended half-life, even once a week, factor 8 in a higher dose is good enough. And factor 9 is much simple. One may be factor 9, you give twice a week and be done with it. So ऐसा है कि इसके सब में parents have to be motivated, children have to be motivated, and patients will have to be motivated, because they will feel that अगर हम प्रोफिलैक्सिस लेंगे तो inhibitor develop हो जाएगा. These are the scares that people have. It is not so. Whether you are taking on-demand treatment or prophylaxis, the incidence of inhibitor development is the same, maybe marginally more. So there is no such thing as episodic treatment or on-demand treatment. सबको gold standard is all of the world is prophylaxis. Yes. And that should be the message that everybody should get. And अगर से अब हमारे मीटिंग में भी जैसे हम पूछते हैं कि कितने लोग जाके प्रोफिलैक्सिस लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 1-2 हाथ निकलते हैं, बाकी के 90% हाथ नहीं उठता. Why are they not accessing government care? Why are they not going to the government hospital and taking the medicine? After all,
you know, it's that for your own good that you're taking. Now you will go give it once a week, once in 2 weeks, once 3 weeks जाके लेता है. That is not correct. I mean, there may be issues, but you have to have also remember that every bleed in a child, in a patient, costs 2 weeks of his life. अगर से समझो आपको 10 bleed हो गया, और life का 150 days मार गया, normal life. So therefore, you will find that हमारा NHR में भी, because people don't take prophylaxis, not many people are more than 40, 45. जो 40, 45, 48 ये एज ग्रुप है वो बहुत कम है, लेकिन 20, 30 बहुत है. So this is the problem that अगर से you will have to have people who are age 70, 80 ऐसा टाइप का भी होना चाहिए. And if you are taking prophylaxis and you are taking your therapies, then you will reach that normal age of 68, 70. India में at least 70 years होना चाहिए. Normal life expectancy of our average Indian is 68 to 70. So we should come to that level. But we are losing about a decade and a half because patients bleed, and each bleed will cost you that much. Yes, Dr. Sir, thank you so much. अब मैं आपको बताते हुए हमें ये खुशी हो रही कि डॉक्टर सिसिल सर की मतलब उनके इनिशिएटिव से हम हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस इंडिया 10th और 12th के बच्चों का एग्जाम प्रोफाइलैक्सिस कर रहे हैं ताकि वो ब्लीड फ्री से टेंशन फ्री से पेपर लिख के. तो ये सिसिल सर का इनिशिएटिव था कि आप सब चैप्टर के जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट थे उनको हमने अलग से फैक्टर्स भेजे थे जिन चैप्टरों ने नाम भेजा था उन सबको. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सिसिल सर, डॉक्टर वेंकटेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम हमारे एम और ऑब्जेक्टिव के साथ हीमोफिलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेम सर के नेतृत्व में काम कर रहे हैं. आप भी आपकी सोसाइटी के साथ जुड़ के सोसाइटी के साथ काम करिएगा. आपके जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के माध्यम से फेडरेशन को भेज दीजिएगा. हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का. यस डॉक्टर. तो मैंने देखा 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन है कि यूडीआईडी के बारे में, इनहिबिटर के बारे में और इंश्योरेंस के बारे में. तो मैं आपको अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हमने जो अपना HFI ने जो अभी इसका वेबिनार का सीरीज शुरू किया है तो उसमें डेफिनेटली एक आध सेशन रहेगा इंश्योरेंस के ऊपर, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए. यूडीआईडी कार्ड का परसेंट, इसीलिए मैंने बोला था कि एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इंटरनेट में सर्च कीजिए कि असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, तो परसेंटेज कैसे निकलता है. लेस देन 1% का फैक्टर लेवल है तो आपको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना ही है. तो आपको ये सब पता होना चाहिए, इसके लिए आप प्लीज सर्च कीजिए. किसी ने पूछा है कि इनहिबिटर के बारे में, मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. आप अपने डॉक्टर को पूछिए या फिर इंटरनेट पे सर्च कीजिए हीमोफिलिया इनहिबिटर्स, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन, और यू कैन मेल टू support@hemophilia एंड वी विल सेंड यू द डिटेल्स. थँक यू सो मच. हाँ व्यंकटेश सर. हाँ व्यंकटेश सर. हाँ बोला ना सर. हा काय आले मराठवाड्यामध्ये आज थोडासा प्रॉब्लेम येतोय. मराठवाड़े में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. जलगांव का एक पेशेंट है ये, और जो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर था उधर सिविल सर्जन था, वो उसने हीमोफिलिया के लिए सर्टिफिकेट नहीं दिया. ये जलगांव का है. उसका जो यूडीआईडी कार्ड उसने फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया है. तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको सर कि उसका जो है, जब आप ड्राफ्ट लेके जाएंगे इसका डिसेबिलिटी असेसमेंट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, उसमें क्लियरली लिखा है लेस देन 1% अगर आपका फैक्टर लेवल है और आपको साल में 1-2 बार ब्लीड हुआ है तो आपको 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना है. तो कैसा होता है ना कि अगर डॉक्टर डिनाई करता है तो आपको नहीं पता क्या करना है. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो जानकारी होनी चाहिए. इसीलिए बोल रहा हूँ कि एजुकेशन, बीमारी के बारे में, अपने राइट्स के बारे में वो पता होना चाहिए. तो इसलिए आप अगर नेट पे सर्च करेंगे आपको ड्राफ्ट मिलेगा, वो ड्राफ्ट लेके आप वो सिविल सर्जन से, वो डॉक्टर से बात करके बोल सकते हैं देखिए इसमें रूल्स में लिखा है, आपने रिजेक्ट कैसे किया. डॉक्टर से भी बात हो गई थी, I would suggest उसने भी मंजूर किया था, लेकिन आगे क्या हो गया मालूम नहीं. उसका फॉर्म रिजेक्ट, सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया है ऑनलाइन. नहीं, देखो ऐसा है कि जहां तक पॉसिबल है किसी पेशेंट डॉक्टर के साथ फाइट नहीं करने का, क्योंकि डॉक्टर का भी उसका अपना रूल्स होता है, वो होता है, ये होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना रिकॉर्ड्स जो है, फैक्ट रेट लेस देन 1% है, और इनहिबिटर क्या है, और इसका ऑर्थोपेडिक असेसमेंट क्या है, तो HGH स्कोर क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट अगर से हैं तो कौन डॉक्टर रिफ्यूज करेगा. ठीक है,
अगर से डॉक्टर को जानकारी नहीं है तो कोई और सिविल सर्जन के पास जाओ ना, एक ही सिविल सर्जन नहीं है, एक ही डॉक्टर नहीं है ना, एक गांव में, एक तालुक में कितने होते हैं. You can go to any other person who is sympathetic towards it, and maybe it is necessary as a part of the chapter to educate the doctors about this issue. Yes, Okay, sir. ताकि एक ही प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं कि एक बच्चा को ऐसा हुआ, 10 बच्चे को हो सकता है, तो you have to encourage the doctor's knowledge and tell them that the documents are there, that उसका factor 8 का level है, it was done at this time in this laboratory which is NABL accredited, इसका स्कोर जॉइंट स्कोर ऐसा है, इसका डिसेबिलिटी ऐसा ऐसा करके वो तो टिक मार्क पड़ता है. You have to educate the doctor, if necessary have a program with them and have a program through HFI. We will be happy to educate them, there is no problem, but do not go and fight with the doctor. Sorry, sir. because उसका भी लिमिटेशन होता है, उसका भी Yes, sir. ये रिस्ट्रिक्शन होता है, उसका भी लिमिटेशन होता है. यस सर, डॉक्टर्स का भी लिमिटेशन होता है हर बार, लेकिन हम रामू उसके सर, ऊपर अच्छा से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हमें दादा वो जो इशू डॉक्यूमेंट है लेके जाओ सब. डॉक्यूमेंट लेके जाओ, और कुछ हेल्प चाहिए तो डॉक्टर वेंकटेश का मुझे आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं, हम उसको और डॉक्टर से कन्विंस कर सकते हैं अच्छा से. ये जितेंद्र सर बोलिए, आपका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे. सर मैं ये बोल रहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसमें हीमोफिलिक डिसेबिलिटी मिनिमम शायद 80% लिखा है कि वो 80% के बाद में ही उसका वो जारी होगा सर्टिफिकेट. नहीं, फैक्टर 1 लेस देन 40% है. सर मैंने उसकी गाइडलाइन 2016 में जब आई थी तब देखी थी, और मेरा सर्टिफिकेट सर वो मोर देन 80% का ही बना हुआ है. मेरा प्लस मेरे एक फ्रेंड का बना हुआ है, तो मोर देन 80% का ही बना. वो मेडिसिन डॉक्टर जारी करता ना कि ऑर्थोपेडिकल या कुछ दूसरा. सिविल सर्जन के साइन है उस पे, बट वो मेडिसिन डॉक्टर ने किया हुआ है. नमस्कार सर, उसमें एक टीम होती है, वो टीम डिसाइड करती है. उस टीम में ऑर्थोपेडिक्स भी होते हैं, जहाँ हेमाटोलॉजिस्ट है वहाँ हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं. टीम डिसाइड करती है, बट जो हीमोफीलिया के लिए है वो मेडिसिन डॉक्टर डिसीजन लेता है. ऑर्थोपेडिक उसमें क्या है कि इंडिया में बहुत सारे जगह पे हेमाटोलॉजिस्ट नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में मेडिसिन वाले को ये किया जाता है. जी, मैं वो शॉर्ट ढूंढने के मतलब वो सर्कुलर ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो उसका बहुत दिन से काम नहीं पड़ा था मेरे को, इसलिए. और एक जो इंश्योरेंस की बात आई, तो इस सभी इंश्योरेंस कंपनी को IRDA ने दिया हुआ है कि कॉन्जेनिटल डिसीज और जेनेटिक डिसऑर्डर को कवर करना है, बट वो कुछ परसेंटेज कवर करती है. टोटल सम एश्योर्ड का 25% शायद कवर करती है वो. जितना कवर करती है प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है. जितना कवर होता है टेक एडवांटेज. टोटल सम एश्योर्ड का 25% कवरेज देती है सारी इंश्योरेंस कंपनियां. अगर से 25% देगी रिइंबर्समेंट में, तो 70% कवर हो जाएगा ना. अगर से समझे हेमलिब्रा लेना है, ओके, अगर से 25% कवर होता है तो संभव प्रोग्राम है उनका, पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है, उसमें अगर एक ले गया तो 2 मिल जाता है एनीवे, तो 70% तो कवर हो जाता है सर. और उसके अंदर उसमें भी हमको 100% होना चाहिए. नहीं, उसके अंदर भी सर उसमें भी एक क्लॉज है कि जो भी सम एश्योर्ड आपका है उसके बाद में आप टॉप अप लेके उसको बढ़ा सकते हैं. मतलब अगर आपका 2 लाख रुपए का है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तो आप उसमें 30 लाख 40 लाख रुपए का टॉप अप ले सकते हैं. उसका 25% भी हो सकता है. उसका 25% भी हो सकता है. जैसे 40 लाख है तो 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर हो सकता है वहां पे. बराबर. आई थिंक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इंश्योरेंस के ऊपर डॉक्टर वेंकटेश सर ने बोला, ये तो हम विस्तृत में उसके ऊपर चर्चा करेंगे. जितेंद्र सर, आप भी हमारे एक स्पीकर ही रहेंगे, क्योंकि आप उज्जैन से खुद MP के लिए एडवोकेसी कर रहे हैं, तो आपको लेकर भी हम एक सीरीज बना लेंगे. तो मैं, क्योंकि संडे इवनिंग है, फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना जरूरी है. सिर्फ वॉलंटियर करते रहेंगे तो फिर निकाल देंगे हमको, क्योंकि मैं कल से मतलब कलकत्ता से लेके अभी तक हीमोफीलिया के साथ में हूँ. तो थोड़ा हम एंड की तरफ चलते हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप support@hemophila.in के ऊपर डाल दीजिएगा. डेफिनेटली उसको विस्तृत में आपको जवाब वहाँ पे मिल जाएगा. ट्रीटमेंट के रिलेटेड आपको सब कुछ जवाब डॉक्टर सुशील सर, डॉक्टर वेंकटेश सर आपको दे देंगे. वो सिमिलर क्वेश्चंस रहेंगे तो हम एक्सपर्ट हेमेटोलॉजिस्ट से आपको जवाब दे देंगे. तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं. मेरे साथ हमारे EC मेंबर नटराज जी, वुमन चेयरपर्सन इंदिरा मैडम, RCC धर्म जी, जिम्मी जी, संतोष जायसवाल जी, RCS सौरभ,
और सभी अक्रॉस इंडिया के जो की पर्सन जुड़े हुए आप सभी का मनपूर्वक मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये वेबिनार नेशनल वेबिनार सीरीज हम रेगुलर करते रहेंगे। फर्स्ट वेबिनार सीरीज की कल्पना प्रेसिडेंट प्रेम सर की थी और हम रेगुलर ये करते रहेंगे और आगे से आपके साथ में जुड़े रहेंगे। मीन द टाइम कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ेगा। आपके सब्जेक्ट भी आप सजेस्ट कर लीजिएगा, उस सब्जेक्ट को लेकर भी हम आगे से वेबिनार प्लान करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Thank you. एक बार स्क्रीनशॉट करते वापस से, सौरभ बोल रहा था सभी ने वीडियो ऑन कर देंगे तो मैं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट भी जरूरी है थोड़ा सा। यस, गुड गुड, थैंक यू। रामू जी, मैं डॉक्टर वेंकटेश जी से एक बात कहना चाहती हूँ बस। यस प्लीज नेहा मैडम। मतलब वो रोल, हेलो डॉक्टर वेंकटेश, आप सबके Hello, लिए, आई मीन आज की जनरेशन के लिए, लड़कों के लिए बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ रोल मॉडल हैं। मैं चाहूंगी कि आप कभी हमारे कोलकाता चैप्टर में आए एंड यहाँ के बच्चों, यूथ को, जो मतलब खास करके ग्रोइंग डेवलपमेंट एज में है, टीनेजर्स हैं, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बने, पर्सनली 1-to-1 उनसे मिलें। Absolutely. तो बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो आपको Definitely. देखेंगे, आपकी स्टोरी देखेंगे, आपको देखेंगे आपने कहाँ से कहाँ तक, मैंने पिक्चर्स देखा आपका, विच इज रियली इंस्पायरिंग। मैं इंस्पायर्ड हूँ तो आई एम लाइक, मतलब ऑब्वियसली बच्चों को तो बिल्कुल इंस्पायर करना चाहिए। No, no, it will Thank inspire you, ma'am. doctors also. Thank It you. will inspire Yeah, doctors also. एक्सपर्ट Doctors है also तो will. पूरा एंटायर कोलकाता टीम एक्सपर्ट हो गया। आपका 40 साल का सेलिब्रेशन वेंकटेश जी को लेके करते हैं। यस।